इस इंटरनेशनल सेमिनार के सिलसिले में मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, मैं ये बता दूँ कि सदफ इंटरनेशनल एक ऐसी बज़्म है जिसके तमाम सेमिनार्स पे आप निगाह डालेंगे तो यहाँ वेरिएशन आपको नज़र आएगा। ऐसे मौज़ूआत के उर्दू अदब में जिन मौज़ूआत के सिलसिले में सोचने में भी शायद क़बाहत महसूस होती हो। मदरसा का किरदार, उर्दू का किरदार, उर्दू के किरदार पे आपने बहुत सारे सेमिनार देखे होंगे, अटेंड किए होंगे, लेकिन मदरसा के किरदार पे बहुत ही कम सेमिनार मुनक़िद किए गए। इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि आज भी हमारे बहुत से प्रोफेसर हजरात यूनिवर्सिटियों में अगर आपने कोई ऐसी किताब पेश की जिसका मौजू इस्लामियात हो तो वो कहते हैं इसका उर्दू अदब से क्या ताल्लुक़ है। और ये तो मैं बहुत झेलता हूँ। मेरी किताब जब असलहे सिक्के और डाक टिकट इस्लामियात, डाक टिकट में इस्लामियात आई तो हर इंटरव्यू में यही पूछा गया कि इसका अदब से क्या ताल्लुक़ है। मैं कुछ नहीं कह सका, सिर्फ ये कहता था कि भाई जो आसारुस सनादीद का ताल्लुक़ है वही इस किताब का ताल्लुक़ है। तो आप आसारुस सनादीद को तो निसाब में शामिल करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती है तो आप कहते हैं कि अदब से इसका रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे हैं कि सदफ इंटरनेशनल, सेवक फाउंडेशन और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का इश्तराक इस मौजू की अहमियत को बताता है। ख़ास तौर से मौजूदा अहद में इस पर बहुत ही गुफ्तगू की ज़रूरत है ताकि हमारे जो मदरसे के फ़ारिग़ीन हैं या वो मदरसा जो एक तालीमी इदारे के तौर पर बहुत बड़ी आबादी को ख़ानदा बना रहा है,
وہ مدرسے جو لاکھوں کی روزی روٹی کے مسئلے فراہم کر رہا ہے، یقیناً ایسے مدرسوں کا قومیت کی تشکیل میں، ملک کی تعمیر و تشکیل میں ایسے مدرسوں کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ ان تمام باتوں کو بہت ہی منظم طریقے سے اس سیمینار کے غرض و غایت، اس کی غرض و غایت اور اس کے مقاصد کو پیش کرنے کے لیے افتتاحی کلمات کے طور پر میں گزارش کروں گا پروفیسر صفدر امام قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس سیمینار کے منشا اور اس کے پیچھے کیا آپ کے منصوبے کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ اپنی باتوں کو پیش کریں۔ صدر محترم، اسٹیج پر موجود محترم شخصیات اور ہال میں موجود خواتین و حضرات، سیمینار کی غرض و غایت کے سلسلے سے کوئی تفصیلی گفتگو کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جس کے بارے میں ہم سب کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوالات ہیں، کچھ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اور یہ موضوع کیا ہے، اس موضوع کے حصے کیا کیا ہو سکتے ہیں، ان تمام باتوں پر ہمارے عزیز دوست پروفیسر محمد سجاد تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ وہ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ سیمینار لفظ یا سیمینار کا دنیا میں جب چلن ہوا تو اس کا ایک خاص مقصد تھا کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائے جن کے لیے سوشل اسپیس کم سے کم ہو لیکن وہ اہم ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے سوالوں پر گفتگو کرنے سے ہم احتراز کرتے ہیں، کئی بار کچھ عجیب و غریب سوالات کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور ان کے جواب دینے میں کچھ نزاکتیں پیدا ہوتی ہیں اور ہم ڈیفنسو موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اردو کا سوال، مدارس اسلامیہ کا سوال اسی انداز کا ہے کہ جب آپ پر کوئی کوشچن مارک لگانا چاہتا ہے تو وہ لگا تو دیتا ہے، اس کے پاس تو دلیلیں نہیں ہوتی ہیں لیکن جواب دینے میں ہم بھی ڈیفنسو موڈ میں ہوتے ہیں۔ ہم حقائق کے بجائے ان باتوں پر جاتے ہیں جو جیسے سوال کیے گئے اسی طرح سے ہم جواب دینے لگتے ہیں، حقائق سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پر تحقیقی تنقیدی نقطہ نظر سے اور شواہد کو جمع کر کے بات چیت کی جائے۔ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ ہندوستان کے بڑے مشہور صحافی گری لال جین تھے جو کبھی ٹائمز آف انڈیا کے بڑے نمایاں مدیروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سال دو سال میں ضرور ایک بار وہ تقسیم ملک یا اردو کی بات کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ایک مضمون لکھیں گے۔ وہ اردو اس طرح سے جانتے تھے جیسے ہم آپ جانتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ تقسیم ملک کے مختلف اسباب میں وہ سب سے پہلے اردو کو اٹھاتے تھے، اردو کا ذکر کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹائمز آف انڈیا ہندوستان میں انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کا بڑا پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا، تو 50 خطوط چھپتے تھے، اکثر خطوط ان کے خلاف ہوتا تھا، لیکن یہ بات وہ بار بار کہتے رہتے تھے۔ تو یہ صرف گری لال جین نہیں تھے بلکہ ایسے ہزاروں دماغ اس زمانے میں جب نہ RSS کی اتنی طاقت تھی اور نہ کوئی ان کی حکومت تھی، اس زمانے سے یہ سوال اٹھتے رہے۔ کئی بار جب بازار میں کوئی بم نکلتا ہے یا بم باری ہوتی ہے یا کوئی بم بناتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، کسی گھر میں پکڑا جاتا ہے یا کسی، تو اب اگر وہ کون سا محلہ ہے، کیسے لوگوں کا محلہ ہے، کن کا اسکول ہے، کن کا مدرسہ ہے، یہ ایک انڈیویجول کوسچن ہے، لیکن اس کو کمیونٹی کا طبقے کا سوال بنا کر پیش کیا جاتا ہے جس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور اتفاق سے
पिछले 20-25 वर्षों में हिंदुस्तान में मुनाफरत की एक फ़ज़ा मुनज़्ज़म तरीके से जो पैदा हुई, उसने इन सवालों पर बड़ा दिलचस्पी लेने वाला एक बड़ा तबका पैदा किया और हर गली कूचे में ये सवाल उठता है। मुझे याद है कि जिस दिन दारुल उलूम देवबंद में एक बम पकड़ा गया था उसके हॉस्टल से और उस पर सवाल हुआ, तो आज चैनल्स का ज़माना है, तो सुबह से शाम तक के मदारिस आतंकवाद का गढ़ हैं, यही साबित किया जा रहा था। मुझे याद है कि सिर्फ एक एनडीटीवी का जर्नलिस्ट जो बड़े मशहूर आदमी हैं राजदीप सरदेसाई, उसी की एक रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें यह भी बताया गया कि ये वो इदारा है जिसका हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में नुमाया किरदार हो रहा है, और ये हो सकता है कि एक एलूफ एग्जाम्पल हो, एक ऐसा एग्जाम्पल हो जो अचानक पैदा हो गया। ये इस काम का, इस वाक़े का इस इदारे की तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा किसी सहाफ़ी को ये पता नहीं था कि वो जहाँ बम वो देख रहे हैं उसकी तारीख क्या है, उसका किरदार क्या है। तो होता क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाल में जीने के आदी हैं, और हमारी जो सहाफ़त है और अब उसी तरह से सियासत है, उसमें उन लोगों का वो नस्ल अब ख़त्म होती जा रही है जिसका तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। हमारे पुराने सहाफ़ी थे, वो तरबियत याफ्ता इस तौर पर थे कि हिंदुस्तान की सियासत, हिंदुस्तान के इब्तिदा से लेकर आज तक जो ये तारीख़ है, किस तरह से किन स्टेजेस में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इनके वाकिफ़कार होते थे। तो जब इनकी वाकफियत रहेगी तो किसी छोटी सी बात को वो तारीख़ के तनाजुर में देखेंगे और वो बताने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ कैसे फैलती है और कैसे सिमटती है या मिटती है। कोई चीज़ अचानक नहीं पैदा होती, तो उसको फैलकर तहकीकी नज़र से उस पर तवज्जो की जाती है। लेकिन आज से सहाफ़त में भी अनट्रेंड लोग बहुत हैं, तो अब उसे कोई वाक़या मालूम हुआ, कोई बात की गई, तो उसने देखा नहीं कि इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, और इसी वजह से सेंसेशनलाइजेशन और एक हसास मौजू पे कुछ ऐसी गुफ्तगू होती है जो नहीं होनी चाहिए। मदारिस बार बार जब मदारिस का तज़किरा होता है, आप अभी 15 अगस्त के एक हफ्ता पहले से उत्तर प्रदेश के के अखबारों के या वहाँ के से जो खबरें आ रही थी, देखिए तो वहाँ भी इसी तरह से छोटी सी बात थी, लेकिन उसको फैलाने की, बतंगर बनाने की और उससे कुछ जो पॉलिटिकल माइलेज हो सकता है, जो वोट में तब्दीली हो सकती है, इस तरह की कोशिशें हुई। तो ये कोशिशें हो रही हैं, तो हमारा भी एक काम होना चाहिए कि हम इन कोशिशों के खिलाफ इल्मी नुक्ते नज़र से गुफ्तगू करें और बताएं कि यह कोशिशें बेबुनियाद हैं, या यह जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं हकीकत में इनकी कोई बुनियाद नहीं है, बल्कि ये वह लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो इन बातों को जानते ही नहीं हैं। तो ये इस सेमिनार, इस मौजू के इंतखाब का ये ख़ास मकसद था कि उन सवालों को जो हमारे रोज़ाना मामूलात का हिस्सा है, लेकिन हम उन पर बैठकर सर जोड़कर गुफ्तगू करने से इतराज़ करते हैं या डिफेंस में चले जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इल्मी नुक्ते नज़र से हम बातचीत करें और दुनिया को, कौम को बताएं कि हम उस किरदार के, उस मिट्टी के बने हुए आदमी हैं जिस मिट्टी के आप बने हुए हैं, और जितना लहू आपका बहा है उतना ही लहू हमारा बहा है। दोनों ने एक ही तरह से कुर्बानी दी है और इसी मिट्टी के लिए सबकी वफादारी है। कोई इसमें अलग से एक तबके को अपनी वफादारी साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमको कहें, नहीं तो हम भी आपसे पूछेंगे। तो जो ये सवालात होते हैं तो खुल के गुफ्तगू हो और इल्मी नुक्ते नज़र से गुफ्तगू हो, कोई सियासत दरकार नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है। इसीलिए ये मौका फराहम किया गया। सेवक फाउंडेशन, बज़्म सदफ़ और
NCPUL के डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे सरपरस्त भी हैं और उनकी निगरानी में हम लोगों की अदबी तरबियत भी हुई है। ये इत्तेफाक है कि सब स्टेज पर मौजूद हैं। तो इन तीनों इदारों की कोशिशों से हम यहाँ जमा हुए हैं और हम चाहेंगे कि आज इनॉग्रल सेशन और फिर 2 सेशन जो और गुफ्तगू हो, तो कुछ हम नतीजा खेज गुफ्तगू करें और कोशिश करें कि समाज में, इल्मी दुनिया में ये मैसेज जाए कि इस बात के तहत जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं वो उनकी बुनियादें कमज़ोर हैं। सेमिनार का यही मकसद है और आपके अगर सवाल और जवाब भी इसमें शामिल हो तो हम समझते हैं कि सेशंस हमारे कामयाब होंगे और हम कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे।